Welcome back, students, to the second lesson in which we are trying to learn how to solve a pair of linear equations in two variables by graphical method. To recall, we have learned in the previous class that if you draw a graph of two lines, then there are three possibilities. Possibility number one is that we get a blue line and a red line which intersect each other at one point. Then that intersecting point के जो coordinates हैं x, y would be the solutions of the two simultaneous equations. And because two lines are intersecting at only one point, therefore they have one solution. The second possibility is that जो दो equations हमारे पास हैं उनका एक ही लाइन आए, दोनों equations की एक ही लाइन आए. That means एक ही लाइन का मतलब दो लाइनें एक के ऊपर एक coincide कर जाए, coincident lines. Then these two lines will intersect each other at many points. Therefore, there are many solutions. The third possibility, students, if you recall, is that the two graphs, the two lines that we get on the graph are parallel to each other, like this purple and the orange line. Parallel lines क्योंकि कभी भी meet नहीं करती हैं, therefore such a pair of lines will have no solution. हम लोगों ने आपके साथ पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, वो झूला और हुपला वाला. आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, एजेस वाला. Now this is exercise 3.1. Question number 1. क्वेश्चन है ये ब्लू में. Let's read the question first. आफ्ताब tells his daughter, so आफ्ताब must be the father, tells his daughter 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मतलब 7 साल पहले पापा की उम्र अपनी बेटी से 7 times ज्यादा थी. दूसरी कंडीशन, also 3 years from now, 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be then. Represent the situation algebraically, graphically, and find what are their present ages. Present मतलब आज की उम्र क्या है पापा की और डॉटर की. तो क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार फिर भी सुन सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है. मैं आगे चलता हूं. तो जो हमको बच्चों ढूंढना होता है, ढूंढना क्या है? वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज. अब प्रेजेंट एज ढूंढनी है हमको. तो व्हाट वी विल बी डू, हम आज की ही एज को हम अज्यूम करेंगे. विल से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज x years and the present age of daughter is y years. तो पापा की उम्र है आज x और डॉटर की है आज y. तो जो भी बाद में आंसर आएंगे हमारे x और y के, वो पापा की और डॉटर की आज की एज होगी. ओके बेटा. तो आओ अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. पहली कंडीशन को फिर से देखते हैं. 7 years ago, अगर पापा की एज आज x years है, तो 7 years पहले क्या थी उनकी एज? x minus 7 है ना. आज उम्र है x years, तो 7 साल पहले तो 7 साल छोटे थे ना, तो x minus 7. उसी तरह से जो डॉटर है उसकी आज की एज y years है, तो 7 years ago the daughter's age must have been y minus 7 years. Okay, this is the second step that should be clear to us. जब भी हमने पीछे जाना हो तो हम माइनस करते हैं और हमने आगे जाना हो तो हम प्लस करते हैं.
तो now according to the question, 7 साल पहले पापा was 7 times as old as daughter. So पापा की एज थी x minus 7, डॉटर की थी y minus 7, और according to question that x minus 7 was 7 times. Times का मतलब multiply. 7 multiplied by y minus 7. तो हमने वर्ड्स को अब मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट. वी विल गेट x minus 7 is equal to 7y and 7 is 49 minus 49. ट्रांसफर करते हैं y को इस तरफ, 7 को इधर, तो वी हैव x minus 7y is equal to minus 49 plus 7, और x minus 7y is equal to minus 42. इक्वेशन नंबर 1. इसको हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं. लेट अस हम minus 7y को राइट हैंड साइड में ले आते हैं और 42 को लेफ्ट हैंड साइड में, और रीअरेंज करके लिखते हैं. तो क्या बनता है? 7y इज इक्वल टू x प्लस 42. कॉपी में करके देखो आपने, ऐसे ही आएगा आपके पास भी. 7y इज इक्वल टू x प्लस 42, और y विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7. अब ये इक्वेशन आ गई. अब हम क्या करेंगे? हमको तो ग्राफ्स के साथ करना है, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा. एंड वी नो 2 पॉइंट्स मेक अ स्ट्रेट लाइन. तो हमको 2 ही पॉइंट्स ढूंढने हैं. लेट अस अज्यूम हम पहले x को 0 लेते हैं. जब x को 0 लेंगे तो 42 by 7 विल बी 6. और अब मैं x को 7 लेता हूं, तो 42 plus 7 विल बी 49. 49 डिवाइड बाय 7 विल बी 7. तो जब x 0 होता है तो y 6 होता है, और जब x 7 होता है तो y भी 7 होता है. तो हमने पहली इक्वेशन भी क्रिएट की फर्स्ट कंडीशन से, और हमने उसका फर्स्ट का टेबल भी बनाया. पहले हम सेकंड कंडीशन करते हैं, फिर ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे. सेकंड कंडीशन बोलती है 3 years later. 3 years later मतलब आज पापा की एज है x, तो 3 years later वो हो जाएगी x plus 3. एंड डॉटर की एज है क्योंकि y, तो 3 years later वो हो जाएगी y plus 3. According to the question, x plus 3 is equal to 3 times of y plus 3. So we say x plus 3 is equal to 3y plus 9, और x minus 3y is equal to 6. और ट्रांसपोज किया, 6 को लेफ्ट में ले आए और 3y को राइट में ले गए, तो बन जाता है x minus 6 is equal to 3y, और y will be equal to 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x minus 6 by 3. तो ये सेकेंड कंडीशन हमारी आ गई. अब हम टेबल बनाएंगे. लेट मी अज्यूम मैं x को पहले 6 लेता हूँ. कैसे करते हैं चूज? ऐसा पॉइंट जिससे कोई हमारे पास इंटीजर्स आ जाए. 6 minus 6 तो 0, 0 by 3 तो 0 ही होता है. और अगर मैं x को 9 ले लूँ तो 9 minus 6 will be 3 and 3 by 3 is 1. तो ऐसे नंबर सोचने चाहिए जिससे हमारे पास कोई इंटीजर्स आ जाए, ताकि हमको अपने ग्राफ पेपर के ऊपर उसको ढूंढना आसान हो जाए. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए. फर्स्ट इक्वेशन का 0, 6, 7, 7, और सेकंड इक्वेशन से 6, 0 एंड 9, 1. एक एक करके हम ग्राफ पे हमको ज़रूर स्केल लेते हैं हम लोग. हम कह रहे हैं स्केल मतलब 1 स्क्वायर ऑन द एक्स एक्सिस को 2 ईयर्स ले रहे हैं, एंड 1 स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस को भी हम 2 ईयर्स ले रहे हैं. अगर आपके पास घर में ग्राफ पेपर नहीं है तो आप अपने पेपर के ऊपर ऐसे लाइंस के साथ मार्किंग कर सकते हैं. तो ये पूरा क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप ये निशान लगा लें. ओके, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कोऑर्डिनेट था कि जब x 0 होता है तो y मेरा 6 होता है, तो ये पॉइंट आ गया. और जब मेरा x 7 होता है तो y भी मेरा 7 होता है. ये 2 पॉइंट्स आ गए. फिर मैंने इन 2 पॉइंट्स को स्केल लिया, 2 पॉइंट्स को रखा स्ट्रेट लाइन पे, और ये ब्लू वाली लाइन आगे तक खींच दी. ओके, अब मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स है x 6 है तो y 0 है. x 6, x पे 6 और y पे 0, और फिर x पे 9 और y पे 1. ये रहा 9, x पे 9 और y पे हम गए कहाँ पे 1. फिर से ये 2 पॉइंट्स को स्केल पे रखा, और
आगे इंटरसेक्ट किया तो हम देखते हैं कि आगे जाकर ये इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइंस एक ऐसे पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 42, 12। इसका मतलब ग्राफ पेपर में आपको इतनी जगह रखनी पड़ेगी ताकि आपका 42 आ सके ग्राफ पेपर पे। तो हम इसलिए हमने छोटे छोटे लिए हैं। हमने 1 सेंटीमीटर को हमने छोटा सा लिया है, 1/2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। आपको देखना पड़ेगा आपकी कॉपी में कितनी जगह है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ओके, अगर 42 मतलब 1 सेंटीमीटर को 2 लेना है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 21 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, तभी 21 इंटू 2 42 होगा। वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ग्राफ आप प्लीज बनाने की चेष्टा करें। राइट, सो हमें अपना आंसर आ जाएगा जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। तो x 42 आया। x क्या था? पापाज एज, और y है हमारा डॉटर्स एज। इसका मतलब आज पापा की एज है 42 ईयर्स और डॉटर की एज है 12 ईयर्स। ओके बच्चों, अब यहाँ पे पॉज करो और आप इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में नोट करो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। तो मैथ्स को, कोई भी सब्जेक्ट जब तक हमको पहले का समझ नहीं आ जाए तब तक आगे जाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो डू दिस वर्क, इट विल टेक यू टाइम टू डू इट एंड कॉपी इट अप इन योर कॉपीज। ओके, और प्लीज़ इंटरेक्ट जरूर करो, मुझे बताते रहो आपको समझ आ रहा है तब भी बोल दो यस सर वी आर फीलिंग गुड। नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, फिर से आपको बता सकता हूँ। ओके, तो प्लीज़ कम्युनिकेट। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अ कोच बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो आपने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे और कितने पैसे दिए? 3900। Later the coach she buys another bat and 2 balls for ₹1300. Represent the situation algebraically and graphically. तो हमने अलजेब्रा की इक्वेशन भी बनानी है, फिर ग्राफ भी बनाना है, फिर देखना है कि कॉस्ट ऑफ बैट क्या है और कॉस्ट ऑफ बॉल क्या है। So let us assume that the cost of one bat is ₹X and the cost of one ball is ₹Y. Now according to the first condition, क्वेश्चन क्या है? 3 बैट्स, एक बैट की कीमत x रुपीज, तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी? 3 इंटू एक्स। एक बॉल की कीमत y रुपीज, तो 2 बॉल कितने के आएंगे? 2y। 6 बॉल्स कितने के आएंगे? 6y। और टोटल कितना खर्चा हुआ हमारा? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो आप देख सकते हो हर एक नंबर यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है x plus 2y is equal to 1300. This is my equation number 1. फिर से कोच गई उसी शॉप में, उसने बोला अब मेरे को एक बैट दे दो और 2 बॉल दे दो। उसने क्या किया? उसने बोला ठीक है, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, 2 बॉल की कॉस्ट है 2y और दे दिए कितने? 1300। वाओ, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 को विद इक्वेशन नंबर 2 एंड यू विल फाइंड ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही आ गई। आने भी चाहिए थी ना, उसी दुकान से तो खरीदने गए थे हम। तो x plus 2y is equal to 1300 और बाद में भी x plus 2y is equal to 1300। दैट मीन्स ये तो वही दोनों इक्वेशंस की जो लाइन आएगी वो तो सेम ही आने वाली है। फिर भी एक पॉइंट्स लेता हूं मैं, मान लो मैं इसमें x को लेता हूं 0, तो 2y will become 1300, तो y will become 650। और अगर मैं x को 1300 ले लूं तो मेरा y 0 हो जाता है। दो ही पॉइंट्स चाहिए हमको ग्राफ में लाइन बनाने के लिए। तो मैंने ऐसा किया, ये 0x होता है तो y 650 होता है, तो मैंने इसका ग्राफ लिया, 650 लिया, और जब इसको 1300 लिया इसको ये 0 हो गया, तो ग्राफ एक लाइन बनाई। अब क्योंकि दोनों ही ग्राफ्स की एक ही लाइन आ रही है, दैट मीन्स दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक के ऊपर एक हैं, तो दे विल टच ईच अदर एट मेनी पॉइंट्स, हेंस देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। तो हम कोई एक यूनिक आंसर नहीं बता पा रहे हैं कि बैट कितने का है और बॉल कितने का है।
कई आंसर हो सकते हैं, हर एक आंसर फिट हो जाएगा, और जो भी कुछ बैट की कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से बॉल की कॉस्ट भी बन जाएगी, राइट? सो देयर इज नो वन सोल्यूशन, कोई एक आंसर नहीं है इसका, मैनी आंसर्स हैं। तो ये सेकंड केस टाइप ऑफ हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ आया? या आप इसको फिर से कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी कॉपीज में इसको आप जरूर नोट करिए प्लीज। थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day were found to be rupees 160. एक महीने के बाद, after a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. So let us say the cost of 1 kg apples is X rupees and the cost of 1 kg of grapes is rupees Y. तो 1 kg एप्पल x के हैं, तो बचाओ बच्चों फर्स्ट कंडीशन, 2 kg एप्पल्स कितने हो जाएंगे? 2x, राइट? और फिर 1 kg ग्रेप्स प्लस y, कितने पैसे लगे हमारे टोटल फर्स्ट कंडीशन में? 160 रुपीज। So I can say y is equal to 160 minus 2x. That's my equation number 1.1. इसका टेबल बना लेता हूँ साथ ही। तो मैं क्या करता हूँ, x और y, x अगर 0 है तो ये 0, तो y 160 हो जाएगा। और अगर मैं x को लूँगा सपोज 80, तो 80 2 जा 160 एंड 160 माइनस 160 विल बी 0, तो वो तो 0 हो गया। मेरे पास एक कंडीशन आ गई। अब मैं सेकेंड कंडीशन को देखता हूँ। After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. So 4 kg apples plus 2 kg grapes, that is 4x plus 2y is rupees 300. अब पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है ना, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 2x plus y is equal to 150. तो पहले आया था 2x plus y equal to 160, अब आ रहा है 2x plus y is equal to 150. तो y is equal to 150 minus 2x, राइट? इसके लिए भी हमने टेबल बनाया, जब x 0 है तो y 150 है, और जब x हमारा 75 है तो y हमारा 0 है। तो ये स्टेप हो गया, अलजेब्रा भी कर लिया हमने, और हमने बच्चों इनका कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढ लिए। अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स का आप प्लीज़ ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाइए और देखिए कैसा आता है ग्राफ, और अगर इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमको कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स मिल जाएगी, राइट? और फिर मुझे आप बताइएगा अपने व्हाट्सएप के ऊपर कि आपका आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है? नाउ अभी जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं यहाँ पर, वो है द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 वेरिएबल्स। कोई भी लाइन होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म बेटा होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a जो है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, b को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c को बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म, राइट? मान लो कोई इक्वेशन होती 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या बोलोगे? x के आगे का नंबर क्या है? x के आगे का क्या नंबर है? 2. So a is equal to 2. What will be b? Good, 3. And what will be c? Minus 5. That's right. तो अगर आपको ये कंपेयर करना आ गया और a b c बताना आ गया, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने लायक रेडी हैं, तैयार हैं? अब करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं।
It says write each of the following equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c, that is the coefficients of x, y and the constant term c. तो ये फर्स्ट पार्ट, चार पार्ट है हमारे पास. फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y is equal to 4.37. है 2x plus 3y is 4.37. अब हम क्या करेंगे, पहले 4.37 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. तो 2x plus 3y minus 4.37 will be equal to 0. कंपेयर करो ऊपर वाली ये हाईलाइटेड इक्वेशन के साथ. तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a क्या है 2, b क्या है 3 और c है हमारा माइनस 4.37. इजी है ना. देखो सेकंड वाला देखते हैं. x minus 4 is equal to under root 3y. 3y को उस तरफ लेके जाना है ना पहले, तो बनेगा माइनस अंडर रूट 3y. सो x माइनस अंडर रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है. b का कोएफिशिएंट माइनस अंडर रूट 3 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 4. राइट. Similarly, if I look at my third question, 4 is equal to 5x minus 3y. तो हम 4 को उधर ले जाएं, अब की बार हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो I will get 5x minus 3y minus 4 is equal to 0. वैसे ही करना है. A will be 5, B will be minus 3 and C is minus 4. और यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखो, 2x is equal to y. 2x is equal to y. y को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, so 2x minus y is equal to 0. और इसको लिख सकते हो आप 2x minus y plus 0 is equal to 0. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें अगर, तो x का कोएफिशिएंट a is 2, y का कोएफिशिएंट b is minus 1 and the constant term is how much, that is 0. ठीक है बच्चों. ओके. नाउ अब एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब मैं इसको देखता हूं फर्स्ट पार्ट को. क्वेश्चन है x इज इक्वल टू माइनस 5. तो इसको मैं उस तरफ ले जाता हूं माइनस 5 को, तो मेरे पास बनता है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो मैं ध्यान से जब देखता हूं, मैं बोलता हूं इसमें तो y है ही नहीं, ये तो सिर्फ x है, वन वेरिएबल है. लेकिन क्वेश्चन बोलता है राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई. 0 इंटू वाई क्या होगा, 0 0 ही तो मैंने ऐड किया ना. किसी भी इक्वेशन में 0 डालने से कोई फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन हमको क्योंकि अब 2 वेरिएबल चाहिए, तो हमने क्या किया, y डाल दिया लेकिन उसका कोएफिशिएंट हमने 0 रख दिया. तो 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. राइट. तो इस तरह से हमारी ये जो इक्वेशन बनी है, इसको मैंने रेड बॉक्स किया है. नाउ दिस इज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको. आओ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. y इज इक्वल टू 2. तो इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये तो सिंगल वेरिएबल है y, x तो है नहीं, तो x खुद डाल दो. 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसका a क्या है 0, b 1 और c माइनस 2. वो भी लिख लेना प्लीज. a क्या है, b क्या है और c क्या है. इस तरह से आप प्लीज अपने आप करिए. 2x इज इक्वल टू 3 एंड 5y इज इक्वल टू 2. मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, मैं बोल नहीं रहा हूँ. ओके, आप कर सकते हैं खुद. प्लीज डू. We are going to exercise 4.1. okay, now this it says the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. सिर्फ इक्वेशन बनानी है. Cost of a notebook is twice the cost of a pen. तो हम लिखेंगे let the cost of notebook is x rupees and let the cost of pen is y rupees.
देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नोटबुक की कॉस्ट डबल है। दैट मीन्स जितने का पेन आता है ना उससे डबल कॉस्ट में नोटबुक आती है। इसका मतलब पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी किसकी कीमत, नोटबुक की। तो x इज इक्वल टू 2y, और यू कैन से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पता चला क्या कर रहा हूं मैं? दिक्कत आए तो फिर से एक बार सुनना मेरी बात, रिवाइंड करो, फिर से सुनो, समझो और फिर खुद से करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूं और वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate what are the values of a, b and c in each case। अभी अभी कराया था मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन, ऐसे 8 पार्ट्स हैं इसके, एक मैं और कराता हूँ, बाकी आप एक अपने लिए होमवर्क में करें, बहुत आसान लगेगा आपको। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। 9 से बड़ा था ना बार, रिपीटिंग वाले नंबर बार। तो मैं पहली बार तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा, कॉन्स्टेंट्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो मेरा क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। Now comparing with the standard equation ax plus by plus c equal to 0, I will find a is 2, b is 3 and c is minus 9.35 बार। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको करना है एज अ होमवर्क। ओके, तो इसके साथ स्टूडेंट हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। हमने आपके साथ ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करना इक्वेशंस को सीख लिया है। हमने सारे एग्जाम्पल्स भी किए हैं, बुक का हर एक एग्जाम्पल भी किया है और बुक के सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो दिस एक्सरसाइज should be completed by all students today itself. Okay, so that in the next class we are ready for the second method of solving pair of linear equations in two variables। 5 मेथड बताया था ना मैंने आपको, एक मेथड हमने कर लिया ग्राफिकल मेथड। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप अनदर मेथड of solving linear equations in two variables। So thank you very much। जब आप ये लेसन YouTube पे देख लें तो आप प्लीज़ वहाँ पर जो है एक लाइक का बटन होता है, थम्स अप का निशान होता है, उस थम्स अप के निशान को क्लिक करें। इफ़ यू लाइक इट अप थम, नहीं अच्छा लगता है तो डाउन थम, बट वो लाइक ज़रूर करें सो दैट मुझे पता चल जाता है उसको देखकर कि कितने बच्चों ने इसको लाइक किया है या नहीं लाइक किया है, सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव एंड आई ऑल्सो नो, उससे पता चलता है कितने बच्चों ने कर लिया है काम, मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो प्लीज़ लाइक द चैनल, दी लेक्चर, और इफ़ यू डोंट लाइक इट, आपको नहीं समझ आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पता तो चलेगा ना मेरे को आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, अपना काम अच्छे से करें। हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं मैथ्स का, 2 चैप्टर हम आपके साथ कर चुके हैं, तो लॉकडाउन के बावजूद हमारा सिलेबस अच्छी करेक्ट स्पेस पे चल रहा है। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।